Today we are going to learn a very important O-level biology topic, homeostasis. Don't worry, homeostasis sound complicated, but the idea is actually very simple. By the end of this lecture, you should be able to define homeostasis, set point, negative feedback, and why negative feedback is important in maintaining a stable internal environment. Let's begin. First, homeostasis. Homeostasis means is a constant, maintain a constant internal environment. Okay, homeostasis requires some certain conditions, right? If you know that our body perform the different functions properly, mm, it having the proper amount of temperature at which the enzyme work, it has the proper pH balance over there. All these things are maintained in our body. So it should be maintained in our body in a proper way. If there is just too cold or too hot, so enzyme will not work properly. If there is a more acidic and more alkaline, so there is a disbalance in our body about the salt concentration. If there is a less glucose amount in our body, so our cells become fatigue and cannot perform their function properly. So this is very important that homeostasis occur and it keep all these things in a balanced way. So homeostasis, what is the importance of the homeostasis? Homeostasis is mainly involved in managing various internal variables of the living system like body temperature, pH of various fluid, the concentration of different ion, and the body sugar level. These are the different things which are very important to maintain in our body. Okay, so this is the negative feedback. What is the negative feedback? For example, if there is a condition in our body that temperature becomes so high, so there is a something in our body which recognize it, and after recognition, it converted all the scenario and converted our body temperature normal as the 37 degrees centigrade. Why it is important? Because at this temperature, the enzyme was best, right? So it is very important that temperature should be balanced. अच्छा तो यहाँ देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा ये नेगेटिव फीडबैक किस तरह से होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप तो ये हमारा स्टार्ट होता है स्टिमुलस से स्टिमुलस देन सेंसर देन कंट्रोल एंड देन इफेक्टर स्टिमुलस क्या चीज है स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है या इंटरनल फैक्टर हो सकता है कि जो हमारी बॉडी पे एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सेंसर होते हैं या जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं राइट और फिर कंट्रोल सेंटर तक ये मैसेज जाता है कंट्रोल सेंटर में आपके पास टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं आपके पास पेनक्रियास भी हो सकती है आपके पास ईडीएच भी हो सकता है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकता है दीज आर द डिफरेंट कंट्रोल सेंटर ठीक है फिर उनके पास मैसेज जाता है और फिर वहां से मैसेज कन्वे होकर हमारे इफेक्टर्स तक जाता है इफेक्टर्स जो है वो हमारे पास मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स हो सकते हैं और फिर ग्लैंड्स जब वर्क करते हैं तो फिर हमारी बॉडी में सारा जो है वो जो रिवर्स हो जाता है प्रोसेस और जैसे हमारा टेम्परेचर अगर एक्सीड हो जाता है तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक लूप्स होने से सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाता है तो यही चीज हमारी बॉडी में मेंटेन होना जरूरी होती है और इसी चीज को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो अपना प्रॉपर वर्क कर सकें और एंजाइम जो है वो एक अपने मेंटेन टेम्परेचर पर वर्क कर सकें इफ देयर इज अ मोर टेम्परेचर ऑफ कोर्स एंजाइम बिकम डीनेचर तो जैसे ये एग्जाम्पल दी आपके पास बॉडी टेम्परेचर एक्सीड करेगा अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो आपके जो थर्म रिसेप्टर्स हैं वो इस बात को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और जो है वो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में राइट हाइपोथैलेमस एक आपका ब्रेन के अंदर एक पार्ट है वो एक थर्मो रेगुलेटर कहा जाता है राइट थर्मो रेगुलेटर तो वो जो है वो कमांड करेगा और उसके कमांड से फिर क्या होगा कि स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और वो फिर जो है जब स्वेट प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद जो है वो हीट रिलीज होगी बॉडी से और टेम्परेचर जो है वो हमारा फाइनली नॉर्मल हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक इसी तरह से होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म भी हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं और सेम चीज हम इसको होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं जिसमें स्टिमुलस है देन इस रिसेप्टर है एंड देन द सेट पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसमें तमाम जो हमारी बॉडी में जो चीजें जो नॉर्मल है उनको हमने दोबारा से रिवर्स करवा के वही कंडीशन को मेंटेन करना होता है तो दिस इज कॉल्ड द सेट पॉइंट फिर आपके पास वो इफेक्टर आ जाता है और फिर इफेक्टर जब वर्क करते हैं तो फिर हमारी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है ओके दिस इज अगेन द सेम पिक्चर these are the different conditions of the negative feedback loop okay so what are the different conditions which our body in our body different conditions apply for example body temperature sometimes it fluctuate
So if the body temperature fluctuate, so enzyme cannot work properly. So it should be maintained. So how it should maintain? And let's come to the next slide. Type of homeostatic regulation in the body. अगर हम देखते हैं होम्योस्टेसिस को, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें होम्योस्टेसिस के रेगुलेशन नजर आ रहे हैं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम्योस्टेसिस जो है, जिसमें हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ये वो मेंटेन रहता है। तो इसको हम इसलिए मेंटेन करवाते हैं ताकि एंजाइम जो है वो आपके प्रॉपर वर्क करें, आपकी बॉडी का जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल रहे, इसके अलावा जो आपका वाटर का पोटेंशियल है वो नॉर्मल रहे, ताकि हर चीज जो है वो बॉडी में प्रॉपर वर्क करती रहे। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट कंडीशन है जिसमें होम्योस्टेसिस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन क्या है? Thermoregulation is the process occurring inside the body that is responsible for maintaining the core temperature of the body. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है इट शुड बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है, और ये एंजाइम के लिए बहुत अच्छा जो है वो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और इसमें वो अपना सूटेबल इन्वायरमेंट में वर्क करता है। अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपको आप को फीवर भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फीवर के कंडीशन में भी होता है, जब आपका टेम्परेचर हाई जाता है तो एट दैट टाइम एंजाइम आर अनएबल टू वर्क प्रॉपरली, और फिर आपको जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, और आप जो खाते हैं वो वॉमिट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम हाई हाई हुआ होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अगर एक्सटर्नल फैक्टर की। फॉर एग्जाम्पल आप सन में गए, सही है, सनलाइट रेज बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर हुआ, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो इस चीज को जो है हमारी बॉडी में एक चीज होती है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, राइट। हाइपोथैलेमस जो होता है वो उस चीज को रेगुलेट करता है। तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने एग्जाम के लिए भी ये वाले वर्ड को याद रखना है कि हमारे जो हॉट एनवायरमेंट में एक चीज होती है हमारे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन से रिलीज में होता है, और ये थर्मो रेगुलेटर कहलाता है। हाइपोथैलेमस कंसिडर्ड एज अ थर्मो रेगुलेटर। अब थर्मो रेगुलेटर, इसको सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज हो गया है और अब उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो इसी को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, और फिर ये आगे मैसेजेस कन्वे करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक होता है, और फिर सब कुछ रिवर्स होके नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये फैन, ठीक है, आपके घरों में बहुत ज्यादा अगर आपको गर्मी लग रही होती है, सब कुछ होता है, तो आप फैन को ऑन कर लेते हैं, राइट। फैन को ऑन कर लेते हैं, फैन को ऑन करते हैं तो आपको जो है वो गर्मी का एहसास कम होने लगता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो आप हीटर यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए समटाइम हम फैन को यूज करते हैं अगर बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट है, और अगर बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो हम अपने टेम्परेचर को होम में कंट्रोल करने के लिए हीटर यूज करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है तो हाइपोथैलेमस किस तरह से वर्क करता है, और वो स्वेट ग्लैंड से स्वेट को रिलीज करवाता है, और इस तरह से जब हीट रिलीज हो जाती है तो हमें एवोपरेशन के थ्रू तो हमें कूल फील होता है, और फिर हमारी बॉडी में सारा सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी को ही हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमें सर्दी लग रही होती है, जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो एक दूसरा मैकेनिज्म करती है, और उसका नाम होता है शिवरिंग। शिवरिंग करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, और शिवरिंग से फिर हमारी बॉडी में हेयर रिएक्टर मसल्स जो है वो आपके हेयर एक्टर मसल्स जो है वो वर्क करेंगे, और हेयर एक्टर मसल्स जब वर्क करेंगे तो फिर वो किस तरह से आपको टेम्परेचर को नॉर्मल कर देंगे। लेट्स सी इन दिस पिक्चर। ओके, देयर इज अ टू कंडीशन। यहाँ देखिए, अगर बॉडी टेम्परेचर एक तरफ लिखा हुआ है फॉल हो रहा है, एक तरफ लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट, ठीक है, नॉट 37 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा? वही हाइपोथैलेमस, इट्स अ कंट्रोल सेंटर। तो ये कमांड करेगा, राइट। अब ये कमांड करके किन किन चीजों को हमारी बॉडी में चेंज करेगा? क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी। नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो उसके रिजल्ट में हीट लॉस होगी इन्वायरमेंट में, और स्वेट ग्लैंड जो होंगे वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, और जब स्वेट प्रोड्यूस करेंगे तो एवोपरेशन का प्रोसेस होगा, और आपकी आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। और जब हीट लॉस्ट हो जाएगी इन द एनवायरमेंट,
तो आपके बॉडी का टेम्परेचर रिवर्स होके वही नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। वो इंक्रीज हुआ था, नेगेटिव फीडबैक हुआ आपकी बॉडी में, एंड इट बिकम नॉर्मलाइज। तो ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए कि पहले ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, फिर जो है वो स्वेट ग्लैंड रिलीज हुए, फिर एवोपरेशन वाला वर्ड आपने याद रखना है, हीट लॉस्ट होने की बात करनी है। इफ द बॉडी टेम्परेचर फॉल, अगर बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है जैसे सर्दियों में होता है, तो उस टाइम इसका रिवर्स होगा। ठीक है, अब आप बॉडी टेम्परेचर जो फॉल हुआ है उसको हमने थोड़ा मेंटेन करना है, 37 तक लेके जाना है। तो बॉडी वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हीट हमारी बॉडी में कंजर्व हो जाएगी। सही, वो रिलीज नहीं होगी। अब स्वेट ग्लैंड का तो इसमें काम ही नहीं है ना, कोई स्वेट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो शिवरिंग होगी, उसकी जगह पे यहाँ पर होगी शिवरिंग। और हेयर एडेक्टर मसल्स जो होंगे, यहाँ पर जब हम शिवरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है कि शिवरिंग की वजह से यहाँ पर आपको, जी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, हेयर इरेक्टर मसल्स, राइट। हेयर इरेक्टर मसल्स जो होंगे वो आपके वर्क करेंगे, और हेयर इरेक्टर मसल जब वर्क करेंगे तो वो हीट को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे, और उसको हीट को ट्रैप कर लेंगे सराउंडिंग की। इस तरह से आप, और वो इस तरह से हीट को जनरेट करेंगे, और आपकी बॉडी जो है वो कुछ देर में वार्म फील करने लगेगी। तो आपकी बॉडी में जब आपका बॉडी लोड का टेम्परेचर लो होता है तो शिवरिंग होती है, आपको शिवरिंग होती है, ये एक मैकेनिज्म होता है, और फिर इस तरह से अपनी बॉडी में हीट जो है वो रिटेन हो जाती है, एंड यू फील बेटर। और जबकि जब बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें उसका अपोजिट होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होके स्वेट ग्लैंड आपका स्वेट रिलीज करता है, बॉडी एक्सेस, बॉडी जो वैसे जो हीट होती है वो रिलीज हो जाती है, और आप जो है वो कूल फील करते हैं। तो ये था आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, और ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसी तरह से याद होने चाहिए कि किस तरह से पहले शिवरिंग हुई, और किस में शिवरिंग होगी, और किसके अंदर स्वेट ग्लैंड वर्क करेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन है, वो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि टेम्परेचर आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के सेल्स और एंजाइम अपना प्रॉपर वर्क कर सके। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन होना चाहिए, हमारे सारे फ्लूइड्स को, सॉल्ट को भी बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो हमारी बॉडी में सब सारे सिस्टम जो है वो, हमारे ब्लड का प्लाज्मा वगैरह जो है वो सब प्रॉपर वर्क करता रहे, उसके अंदर प्रेशर वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो इट शुड बी मेंटेन। तो फ्लूइड सही हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन उसमें प्रॉपर हो, यूरिया का रिमूवल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हो रहा हो, तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन में ये आपकी सेकंड एग्जाम्पल है, और ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। Here is a complete flow diagram of the osmotic homeostasis. Yes, yes. तो इसमें देखें, जब आप दो कंडीशन, इसमें भी आपके सामने दो कंडीशन है कि देखिए, सब टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी में हम कब सम टाइम कभी हम वाटर का इंटेक ज्यादा कर रहे होते हैं, सम टाइम हम वाटर का इंटेक कम कर रहे होते हैं। और तो सम टाइम ये होता है कि अच्छा, ये कौन सी कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाई अमाउंट का वाटर पिया है, ठीक है, आप नॉर्मली ज्यादा पानी पी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, अगर आपने हाई अमाउंट का वाटर पिया हुआ है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं वाटर के ज्यादा होने की वजह से। तो क्योंकि एनिमल सेल है, उसमें तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो है नहीं, तो आपकी बॉडी के सेल जो है वो तो बस्ट हो जाएंगे अगर हम वाटर का ज्यादा इंटेक करेंगे। तो अगर कोई इंसान ज्यादा वाटर का इंटेक कर रहा है तो उसको भी वाटर का बैलेंस होना जरूरी है। तो उसमें क्या होगा, अब हाइपोथैलेमस उस चीज को एक्टिवेट करेगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि वाटर का इंटेक ज्यादा हो रहा है, वो एडीएच को रिलीज करेगा। सही है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है आपका। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये एडीएच रिलीज होता है और ये किडनी से इसका क्या काम करवाता है कि ये रीएब्जॉर्प्शन कम करवाता है। किडनी को ये फंक्शन करने को कहता है कि भाई लेस वाटर को एब्जॉर्ब करो, और ज्यादा जो वाटर है वो यूरिन की फॉर्म में जाने दो, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा हो गया है, आपने वाटर का ज्यादा इंटेक किया, लेकिन हमें ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा वाटर होगा तो वो हमारे सेल को बर्स्ट कर देगा। सही है, अगर ज्यादा वाटर होगा तो वो सेल आपके बर्स्ट हो जाएंगे, तो हमने उसको बर्स्ट नहीं होने देना। तो हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक होगा, और नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि फाइनली ज्यादा जो वाटर है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारी बॉडी में कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने बहुत लो वाटर का इंटेक किया, फॉर एग्जाम्पल रोजे के टाइम पे आपने सुबह से पानी पिया हुआ और उसके बाद आप शाम तक पानी नहीं पियेंगे ना, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, इस बात का भी बॉडी को
रिकग्निशन मिल जाएगी कि हाइपोथैलेमस इस पर क्या करेगा, एडीएच को ज्यादा वर्क करने को कहेगा, राइट। ये देखिए एरो की डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये एडीएच को ज्यादा वर्क करने को कहेगा। अब एडीएच जो है वो किडनी से ज्यादा वर्क करवाएगा और किडनी जो है वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ताकि यूरिन कम से कम प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो बॉडी के अंदर स्टोर रहे ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस रहे, राइट। तो दिस इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो क्लोज होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे, which is another important topic. So till then, subscribe my channel and like my channel.